Good morning, everybody. Dear students, all of we have studied in previous class about common salt. Common salt means those salt whom are used commonly by all of us. One of them is sodium chloride, and other ones are as bleaching powder, sodium hydrogen carbonate, sodium carbonate, etc. These are used by common persons in their common life, so-called common salts. We have already studied about sodium chloride in previous class, and today we will learn about bleaching powder. Bleaching powder. Bleaching powder, express it means such powdery substance which have ability to bleach. Bleach. What is bleach? Removal of color from any substance is called as bleaching. किसी भी पदार्थ से उसका रंग उड़ा देना ही ब्लीचिंग कहलाता है। रंग उड़ाना, ये पाउडर रंग उड़ाने का काम करता है, इसीलिए इसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका फार्मूला हम जो लिखते हैं केमिकल फार्मूला, वो इस प्रकार से लिखा जाता है। यहाँ इस ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है, Cl पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अभी इतना डिटेल आप स्टडी नहीं किए हैं। 11th क्लास में आपको पोलर कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया जाएगा, तब आप अधिक समझेंगे। अभी केवल कोवैलेंट बॉन्ड नाम की एक चीज होती है जो ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में बनी होती है। ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है। एक वैलेंसी, one valency of oxygen is bonded with Cl atom, chlorine atom, and another valency is with calcium, and one valency of calcium is bonded with Cl by ionic bond, positive charge and negative charge. So, according such a structure, such position, the formula of bleaching powder is expressed as CaOCl and Cl. But in your textbook, जो आप NCERT पढ़ रहे हैं, formula of bleaching powder is given as CaOCl2. देख रहे होंगे, किताबें यहाँ आपके सामने रखी हुई हैं। इस CaOCl2 लिखना एक रॉन्ग मेथड है, इसको नहीं लिख सकते हम, क्योंकि हमारे इस ब्रेन में एक क्वेश्चन अराइज होगा। When the valency of calcium is 2 and plus 2 and valency of oxygen is minus 2 and two atoms are in the contact of one another, the valency is no remains, then how Cl may be bonded with calcium or oxygen when the valency is not available?
So this molecular formula is wrong. Really, molecular formula of bleaching powder must be expressed in such form. You must be remembered forever. It is a discussion point, as I think so, that all of you be clear about this such molecular formula. Now the next point, how bleaching powder is obtained. Bleaching powder की प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं? हम लाइम की बात करते हैं. लाइम, LIME. लाइम क्या होता है? चूना. ये जो चूना होता है ना, ये दो रूप में पाया जाता है. आप दो रूपों में यूज करते हैं. एक को कहते हैं क्विक लाइम. ये क्विक लाइम क्या है? CaO, जिसका केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड है. इसे क्विक लाइम बोलते हैं और हिंदी में इसे आप कहते हैं अनबुझा चूना या कली चूना. जब किसी का हम पानी के साथ रिएक्शन करा देते हैं और वाटर इज अलाउड इन क्विक लाइम, then reaction takes place between calcium oxide and water molecule, and hydrated calcium oxide molecule is obtained. It is called as calcium hydroxide. Calcium hydroxide, you can write in such form also. Calcium hydroxide, CaOH का whole twice. It is called as slaked lime. SLACKED स्पेलिंग से याद रखा करिए. Slaked lime and chemical name calcium hydroxide. Slaked lime or calcium hydroxide. Now, if anyone is expressing about the term lime, then it is necessary that you must be too clear that quick lime or slaked lime, because by difference in both one, by using different one, different product may possible, because their properties differ in few manner. You will learn about all these points in further classes. Now we will learn about preparation of bleaching powder. Bleaching powder, how would you obtain bleaching powder? When slaked lime, we have already studied about slaked lime. What is slaked lime? Slaked lime, this is the slaked lime. जैसे आप बुझा चूना या केवल ऑलरेडी खाने के लिए आप चूना इस्तेमाल करते हैं ना, वो उसका फार्मूला ये है. जो बहुत से लोग टोबैको यूज करते हैं या बेटेल यूज करते हैं, पान खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं,
वो इसी चूने का इस्तेमाल करते हैं। आपकी घरों की पुताई भी इसी से होती है। When slaked lime is treated with chlorine gas, chlorine gas is passed over slaked lime. Then the reaction takes place between both and compound obtained is called as bleaching powder. As I think so, about preparation of bleaching powder, you have obtained complete knowledge. And what are the uses of bleaching powder? Various uses are known. To bleach your woolen cloth, cotton cloth, textile in our textile industries, bleaching powder is used. जानते हैं कपड़ों के रंग उड़ाने हैं तो आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का घोल बना लेते हैं और उसमें कलर्ड क्लॉथ को डालेंगे तो उसका जो कलर है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसकी वजह से कलर फॉर्म होता है। आप आगे पढ़ेंगे डाइजोटाइजेशन एंड कलर फॉर्मेशन एंड सो ऑन इन फर्दर क्लास। इस कलर को ऑक्सीडाइज कर देता है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे ऑक्सीडाइज कर देता है? देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl जब ये डिसोसिएट होता है तो ये CaO प्लस Cl2 में डिसोसिएट हो जाता है। जब इसकी केमिकल रिएक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होता है और Cl2 गैस इवाल्व होती है। ये Cl2 गैस जब किसी कलर्ड सब्सटेंस पे पड़ती है, कलर्ड सब्सटेंस, तो वो डिकलराइज हो जाता है। क्योंकि ये कलर्ड सब्सटेंस ब्लीचिंग पाउडर से जब रिएक्शन कराते हो ना, यही Cl2 के साथ रिएक्शन कर लेता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है। असल ये कैसे रिएक्शन करता है? ये Cl2 जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो ये 2HCl और नेसेंट ऑक्सीजन देता है। यही नेसेंट ऑक्सीजन जो आप देख रहे हो, यही नेसेंट ऑक्सीजन ही आकर के एक कलर्ड सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और डिकलराइज कर देता है। शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन देखिए कंप्लीट रिएक्शन है। नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन को इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है, इसका सेंस होता है जो ऑक्सीजन तुरंत बनता है किसी रिएक्शन में, उसे कहते हैं कि ये नेटेंस। नेसेंट मीन्स नवजात ऑक्सीजन है। और इस प्रकार से ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल आप कपड़ों के रंग उड़ाने के लिए लॉन्ड्रीज में भी करते हैं। लॉन्ड्री वाले जो कपड़े धोते हैं उनका रंग कोई उड़ाना चाहता है कि इसमें एक रंग से दूसरा रंग खिलाना है तो ब्लीचिंग पाउडर से पहले ब्लीच कर देते हैं, फिर दूसरा रंग खिला देते हैं। दूसरी बात, और भी चीजें इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि Cl2H2O से रिएक्शन करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है और इस नेसेंट ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन की क्रिया पूरी की जाती है। अगली बात कहा गया है, ये जब हम ब्लीचिंग पाउडर को, हमने आपको बताया कि क्लोरीन गैस निकलता है। क्लोरीन गैस जो फॉर्म होता है ब्लीचिंग पाउडर के डिसोसिएशन पर,
पानी में डाल देते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है। तो अगर आपके पानी में कोई इन्फेक्शन है, फंगस का, एल्गी का, बैक्टीरिया का, तो वो इस क्लोरीन के द्वारा किल हो जाता है। एक प्रकार से जो आपका इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड वाटर है, उसको प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आज भी जो वाटर सप्लाई का पानी पीते हैं हम, उनके टंकियों में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। इसीलिए कभी कभी सप्लाई का जो पानी है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, लाइट येलो दिखाई देता है और पानी कुछ कड़वा होता है। तो बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको पूरा बता दिया गया। जितना आपके कोर्स में था, इतना आप तैयार करें, और तैयार करने के बाद अगले दिन हम फिर मिलेंगे तो दूसरे साल्ट के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। और तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें, पिछली चीज़ों को पढ़ें। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन।